Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tejan Deshwal, IR7 UPSC Engineering Services 2018. In this class, we will start now our DC machines. We have completed networks and now we will be starting our DC machines. Before starting machine, let me tell you one simple, no, a simple, I never give some motivational messages, but what I think is there are two pen. One is pen, one is pain. They are different. It is used to writing, and this pain is to change your life. There are two kind of pain in this world. There are two kind of pain in this world, and everyone has to feel one pain. Okay, what are they? One is pain of discipline, and the other another is pain of regret. It comes first, and it comes later. This gives us the pain of discipline gives us huge dividends. अगर आप इस पेन को फील करते हो then you will be successful in your life. And later on this pain gives us pleasure. But ये पेन ऑफ रिग्रेट आता तो लेट है लेकिन आता बड़ा स्ट्रॉन्ग है. देर आए दुरुस्त आए, वो इसी के लिए बोला गया है. पेन ऑफ रिग्रेट इज द सीवियर एंड वर्स्ट पेन, एंड द बैड थिंग इज दैट you can't change anything then once the time has passed. So I urge every one of you that you are in the preparation stage. These are hard days, but don't lose your hope, don't lose your confidence. Be positive and feel the pain of discipline. Make a schedule, whatever schedule you like, and follow that. कुछ भी शेड्यूल हो सकता है, कुछ भी स्ट्रेटेजी हो सकती है. जस्ट द थिंग इज एक स्ट्रेटेजी हो, एक शेड्यूल हो और एक उसे फॉलो करने वाला हो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. माई गुड ऑल गुड विशेस आर विद यू. Okay, now we have taken around 30 seconds. Now let's start. What will be the contents? Introduction to DC machine. What is DC machine? How it works? Construction, then armature, core, pole, and yoke, and then types of windings. All these things plus then classification of DC machines. Series and wound. Then based on the excitation, series and separately excited, compoundly wound, like that we will do everything. Okay, slowly and slowly. जैसे मैंने नेटवर्क में किया था, one by one all the difficult topics we covered very easily and with questions. So don't worry, let's start. So what is a DC machine? Okay, first what is a machine? एक definition 3 idiots वाली. Machine is something that reduces ह्यूमन एफर्ट. ओके, तो ये तो पेट्रोल वाली मशीन भी हो सकती है, डीजल वाली मशीन भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन भी हो सकती है. ठीक है. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द machines in electrical engineering means where my one of the supply or like one of the input or one of the output is electrical. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो जाएंगी वो. और इलेक्ट्रिकल मशीन्स कौन सी होंगी? which are capable of which are capable of electromagnetic energy conversion. Okay, that is they convert electric to mechanical or vice versa. So these are the machines in our electrical engineering. Now many a time a question comes like a transformer is a machine or not. A transformer is a machine or not. Look, मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन. नाउ यू विल से इन ट्रांसफॉर्मर देयर आर नो मैकेनिकल पार्ट्स. वहाँ पे कोई मूवमेंट तो होती नहीं है किसी की भी, बिकॉज ए ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टेशनरी. दो वाइंडिंग है बस मेरी दो कोर पे. ओके, सो देयर इज नो मैकेनिकल मूवमेंट. सो यू आर करेक्ट. if we strictly speaking if we strictly speaking then transformer is not a machine. Transformer is not a machine. Fine, but the principle of working of transformer is exactly same as any of other machines, like it may be induction motor or maybe a synchronous machine. So the principle of operation is the same, that is Faraday's law of electromagnetic induction.
If I write FLEMI, you should remember it is Faraday's law of electromagnetic induction. So the working principle of transformer is also the same. ट्रांसफॉर्मर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस पे सारी मशीन्स काम करती है, बट उसमें कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती. सो अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो ट्रांसफॉर्मर मशीन नहीं है, बट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, our transformer is like a machine. That's why we study the transformer in our machine subject. Okay, I hope I'm clear what is a machine which is capable of electromechanical energy conversion. ठीक है, और energy conversion means they convert energy, they don't generate energy. अगर आपने कहीं से जनरेट कर दी एनर्जी, दैट मीन्स यू आर गॉड. बिकॉज व्हाट माय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. Fine. Now let's proceed ahead. All the machines works on the basis of flux. What is flux? Flux is nothing but amount of magnetic field. If this is the magnetic field, less flux. This is the magnetic field, so much flux lines, that means my flux got increased. So flux is nothing but the amount of magnetic field. Either it is a DC machine or synchronous machine, transformer, induction machine. Okay, these four kind of machines are there in our electrical engineering. All machines use flux, and it may be permanent magnet DC, or it may be a stepper motor. Okay, or it may be a universal motor, that is also the single phase induction motor. Okay, so all the machines works by using flux. And the interesting thing about flux is that flux has no physical identity. Flux has no physical identity means that you can't see flux. No physical identity. You can't feel flux. You can't see flux. How? Take your hand and put a magnet on it. Will there be any change in your hand? Or will you feel anything? No. Flux will pass through your body, but you won't feel anything. So, flux has no physical identity. Fine. Now, electromechanical energy conversion device, in this electrical to mechanical or mechanical to electrical. Any machine, be it DC machine, be it synchronous machine, transformer or induction machine, is capable of electromechanical energy conversion. That means if you give mechanical input, it will give you electrical output, and if you give electrical input, it will give you mechanical output. ठीक है, DC मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, ऑल एक्सेप्ट ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो हमारा मैकेनिकल आउटपुट नहीं दे सकता, वो तो इलेक्ट्रिकल ही देता है. ओके, एक्सेप्ट ट्रांसफार्मर, जितनी मेरी सारी मशीन है लाइक मोटर और जनरेटर, every motor is also capable of delivering energy, delivering electrical energy if you give mechanical input to them. ठीक है, कोई मशीन मोटर कब होगी, जनरेटर कब होगी, इट डिपेंड्स. किस पे डिपेंड करता है वो हम अभी बात करते हैं. ओके, look, this is an law of conservation of energy, that energy cannot be created, it can only be. First let's see the chronology. सबसे पहले क्या बना था मेरा, सबसे पहले मेरा बना सेल, तो मेरी आई वोल्टेज डीसी. देन सम साइंटिस्ट discovered electromagnetism, that is when a current flows in a wire, a magnetic field is created around the wire. Then third came our Faraday uncle. So Faraday's law of electromagnetic induction, what it said, that whenever a conductor cuts the flux, or when the flux cuts the conductor, दोनों हो सकते हैं, या तो कंडक्टर फ्लक्स को कट करे या फिर फ्लक्स कंडक्टर को कट करे, मीन्स दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. ठीक है, एंड आफ्टर दैट with further developments then came RMF. What is RMF? RMF is my rotating magnetic field, जो हमारा इंडक्शन मशीन या फिर सिंक्रोनस मशीन में होता है. We will do it slowly, don't worry. What is rotating magnetic field? जो हमारा सिंक्रोनस मशीन में या फिर इंडक्शन मशीन में एक फ्लक्स होता है अंदर, रोटेटिंग मीन्स मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, बस ये समझ लो. एंड देन so these are the stages of the machine development. This is the landmark stage when Faraday's law of electromagnetic induction came, क्योंकि इसी के बाद से हमारी मशीन पॉसिबल हुई. ओके, नाउ टेक एनी मशीन, like suppose if I take an example of DC machine, you remember one thing, when a machine is operated, inside the machine voltage and torque are generated. Read here,
When a machine is operated, voltage and torque are common always, means they will be generated. Now it depends on you if you want to take the voltage outside. ठीक है, अगर आपको वोल्टेज बाहर लेनी है तो आप इनपुट दे दो फोर्स, या फिर इनपुट दे दो मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट आप ले लो। अगर आपको उसमें से टॉर्क बाहर लेना है, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बाहर लेनी है, तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई कर दो, एंड देन इट विल गिव अस द मैकेनिकल आउटपुट। ठीक है, सो सी इन दिस डायग्राम, इट इज अ डीसी मशीन। इन एवरी मशीन वोल्टेज एंड टॉर्क आर जनरेटेड। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए, आउटपुट में वोल्टेज चाहिए, देन यू सप्लाई मैकेनिकल इनपुट। तो इस केस में ये मेरा बन जाएगा जनरेटर, क्योंकि ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल को जनरेट कर रहा है। बट रिवर्स, देखो मशीन में तो दोनों चीज जनरेट होंगी जब मशीन ऑपरेट होगी, वोल्टेज भी और टॉर्क भी। अगर मैं बाहर चाहता हूँ टॉर्क, मीन्स आई वॉन्ट टू ड्राइव सम मैकेनिकल लोड, तो मेरे को बाहर चाहिए मुझे मैकेनिकल आउटपुट, मैकेनिकल एनर्जी मुझे चाहिए आउटपुट, देन आई हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज माई इनपुट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं इनपुट में दूंगा, आउटपुट में मेरी आई मैकेनिकल। ठीक है, तो ये मेरी बन जाती है मोटर, विच कन्वर्ट्स माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आई होप आई एम क्लियर that every machine can be used as a motor or generator. Every motor is capable of doing operation as a generator also. Okay, ठीक है। हाँ, उसकी एफिशिएंसी में गेट्स चेंज, क्योंकि हम एफिशिएंसी तो डिजाइन करते हैं, स्पेसिफिक जनरेटर की एफिशिएंसी को हम जनरेटर को माइंड में रखकर डिजाइन करेंगे, मोटर को मोटर में माइंड में रखकर डिजाइन करेंगे, बट इट कैन बी ऑपरेटेड, नो डाउट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद डीसी जनरेटर। व्हाट इज अ डीसी जनरेटर? You can read the definition. A rotating electrical machine which is designed to take the advantage of electromagnetic induction in order to convert mechanical power to DC. DC जनरेटर है तो DC पावर, ओके, इलेक्ट्रिकल DC पावर। तो क्या है जनरेटर? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एडवांटेज लेके हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। Why we want to convert mechanical into electrical? Why we want to convert mechanical into electrical? Because electrical has many advantages. Electrical has many advantages. क्या? इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, इट कैन बी यूज इन अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। लाइक मैकेनिकल मीन्स मेरी टरबाइन घूम रही है, ओके, माई टरबाइन इज रोटेटिंग। इफ आई वॉन्ट टू यूज दिस टरबाइन एज ए बल्ब, कैन आई यूज इट? क्या मैं टरबाइन के घुमाने से बल्ब जला सकता हूँ? नो, आई हैव टू कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रिकल से मैं मोटर भी घुमा सकता हूँ और मैं अपना बल्ब भी ग्लो या फिर बल्ब भी जला सकता हूँ। सो इस इलेक्ट्रिकल को मैं एज ए लाइटिंग लोड भी यूज कर सकता हूँ, फोन भी चार्ज कर सकता हूँ इससे। टरबाइन से तो आप फोन चार्ज नहीं कर सकते, टरबाइन घूमेगी तो कैसे चार्ज करोगे? बट अगर उसी पावर को मैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लूँ, देन आई हैव ए वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस वेयर दिस इलेक्ट्रिकल पावर विल बी हेल्पफुल। ठीक है, प्लस सेकेंड थिंग इज, हमारे मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल है, लाइक जहाँ पे हमारा कोल मिलता है, या फिर नियर कोस्ट लाइन जहाँ से हमारा लाइक यूसे नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है, या फिर क्रूड इंपोर्ट होता है, जहाँ पे हमारा रिफाइनरीज होती है। तो मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर देयर सो दैट हमारा फ्यूल का कॉस्ट ना हो। नाउ सपोज इफ अ टर्बाइन इज रोटेटिंग इन झारखंड एंड यू वांट टू रोटेट अ फैन इन दिल्ली, क्या आप कभी सोचोगे कि हम इतनी लंबी शाफ्ट लगा दें यहाँ से वहाँ तक, और वो टरबाइन मेरी वहाँ से झारखंड से शाफ्ट के थ्रू फैन घुमा दे दिल्ली में? नो, इट्स इम्प्रैक्टिकल, आप सोच भी नहीं सकते। दैट्स वाई व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट हेयर, जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे मेरी जनरेट हुई, हम उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, देन इलेक्ट्रिकल इज ट्रांसफर्ड इजीली थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, एंड देन इट कम्स टू द लोड सेंटर जहाँ पे हमको यूज करना है। नाउ एज अब हम देखते हैं फटाफट फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेटवर्क्स में भी हमने स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहले फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। सो आई होप यू रिमेंबर दैट। आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में, लेकिन फिर भी इफ दे आर समवन हु इज वॉचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम, आई विल टेल दिस। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? वेन एवर ए कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ए डायनामिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, या तो फिर whenever a conductor cuts magnetic flux, or you can also say flux cuts conductor। जो इसका क्रक्स है वो क्या है कि कंडक्टर एंड फ्लक्स के बीच में एक मेरा होना चाहिए रिलेटिव मोशन।
If there is a relative motion between the conductor and flux, then an EMF will be induced. And the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. Okay, what was flux linkage? अगर मेरा टोटल फ्लक्स फाई है तो फ्लक्स लिंकेज था मेरा, लाइक मैंने इंडक्टर में भी देखा था, अगर मेरे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, n इंटू में फाई. सिमिलरली हेयर ऑल्सो, जितने मेरे आर्मेचर में नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे, अगर एक कंडक्टर है दैट मीन्स वन कंडक्टर इज कटिंग 5 फ्लक्स. अगर मेरे चार कंडक्टर है तो चार कंडक्टर आर कटिंग 5 फ्लक्स. अगर मेरे n नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं तो n नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर कटिंग 5 फ्लक्स, दैट मीन्स द टोटल फ्लक्स लिंकेज इज n इंटू 5. ठीक है, फ्लक्स लिंकेज को हम दिखाते हैं भोलेनाथ के त्रिशूल से. नो, इट इज साई, इसको हम बोलते हैं साई. साई इज इक्वल टू n इंटू 5. n क्या है मेरा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, फाई क्या है मेरा, फ्लक्स, बोथ इंटरेक्टिंग ईच अदर, एंड व्हाट इज माय ईएमएफ. जैसा कि फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. तो ईएमएफ इक्वल टू डी साई बाई डी टी, ये हमने इंडक्टर में की थी डेरिवेशन, बट फिर से फटाफट देख लो क्विकली. ई प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ एन फाई. अब n तो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं, और नंबर ऑफ टर्न्स आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल बी माइनस का n इंटू डी फाई बाई डी टी. ठीक है, अच्छा माइनस का n हम क्यों लेते हैं, लुक इट इज ड्यू टू लेंज़ लॉ, बट माइनस आएगा या नहीं आएगा इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ये गारंटेड नहीं है. आई विल टेल यू सिंपल, डिटेल में फिर से भी समझ लेंगे. ट्रांसफार्मर में बड़े आराम से हम देखेंगे कि साइन कैसे लेते हैं. सपोज दिस इज माई वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर, this is my winding in a transformer, and suppose this is my current. If I apply right hand rule to identify the direction of flux, तो आप अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे. माय फिंगर्स विल बी कर्ल, और मैं अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाऊंगा. देन माय थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स. ओके फाइन. नाउ here is a secondary winding. Now when this flux will cut this, look like this is the winding. When this flux will cut these windings, अब suppose this is a time varying flux, means this flux is varying with time, it is a AC supply. ओके, वो बाकी जो मेन है वो बाद में समझ लेंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि साइन कैसे आता है. ठीक है, सपोज फाई आया, यहाँ से फ्लक्स आया सॉरी, फ्लक्स आया और फ्लक्स से कुछ वोल्टेज इंड्यूस हुई. सपोज इफ आई से दैट दिस इज प्लस माइनस, और मेरी वोल्टेज इंड्यूस हुई माइनस का n इंटू में डी फाई बाई डी टी. ठीक है, मेरी वोल्टेज इंड्यूस होगी कुछ भी, दिस इज माई वोल्टेज इंड्यूस्ड. और ये वोल्टेज इंड्यूस क्यों कैसे होगी, इट विल बी इंड्यूस्ड टू अपोज दिस मेन फ्लक्स. जो फ्लक्स इसका क्रिएटर है, ये वोल्टेज उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंड्यूस होती है. वाई, बिकॉज ए कंडक्टर कॉइल अपोजेस एनी चेंज, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एवरीबॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स पोजीशन. ठीक है, तो पहले ये चाह रहा था कि मेरे पास कोई वोल्टेज नहीं थी, देन इट विल अगेन वांट कि मेरे पास कोई वोल्टेज ना हो, देन इट विल स्टार्ट टू अपोज द फ्लक्स, इट विल स्टार्ट टू कट द फ्लक्स. अब बात ये है, वो सब तो बाद की बात है. V1 मेरा आया नेगेटिव. नाउ सपोज इफ आई से कि नहीं, मुझे ये पोलैरिटी नहीं चाहिए V1 की. ठीक है, मुझे ये पोलैरिटी नहीं चाहिए V1 की, मैं तो ऊपर लूंगा माइनस, नीचे लूंगा प्लस. दिस इज माई V. मैं तो अपने वोल्टेज को ऐसे मेजर करूंगा. तो आप क्या बोलोगे, V इज इक्वल टू माइनस का V1 होगा, तो ये पोलैरिटी अपोजिट है, तो V इज इक्वल टू माइनस का n डी फाई बाई डी टी. तो क्या हो गया मेरा, V इज इक्वल टू n इंटू में डी फाई बाई डी टी. क्या साइन आया, प्लस का. हमने तो यहाँ पे भी लेंज़ लॉ लगाया. सो रिमेंबर वन थिंग, to determine the sign you have to see the sense of the winding, means you have to see कि हम वोल्टेज किस पोलैरिटी पे मेजर कर रहे हैं. you have to see two things. first, एक तो अपोजिशन आएगा, लेंज़ लॉ states that the generated EMF opposes the flux that generated it. और दूसरी बात, then we need to see कि हम कौन सी पोलैरिटी पे, एट विच पोलैरिटी वी आर मेजरिंग आवर वोल्टेज, हम किस पोलैरिटी में अपनी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं. मैंने आपको यहीं दिखाया. सपोज अगर मेरा V1 था माइनस का n डी फाई बाई डी टी, ओके लेंस लॉ से आप कह दोगे नेगेटिव साइन आ गया. बट मैं अगर मेजर करने लगूँ प्लस को नीचे करके माइनस को ऊपर करके, क्योंकि मेजरमेंट तो मेरा काम है, मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ फेजर को प्लस माइनस. तो मेरा क्या आ गया, प्लस का n डी फाई बाई डी टी. तो आप ये नहीं कह सकते कि लेंस लॉ वायलेट हो गया यहाँ पे, नहीं.
जिस पोलैरिटी में आप मेजर कर रहे हो साइन उस पर भी डिपेंड करेगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। और अभी भी नहीं समझे, डोंट वरी, ट्रांसफॉर्मर में अच्छे से समझ लेंगे। यू शुड नॉट टेक एनी सीरियस टेंशन अबाउट दैट। तो ईएमएफ क्या है मेरा, माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी में डी आई बाई डी आई कर दो, जब हमने किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे इंडक्टर बन जाएगा एल, ई एम एफ इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से इंडक्टर क्या है मेरा, हाँ सी, यहाँ से इंडक्टर की एक डेफिनेशन और निकल के आती है, एल इक्वल टू एन इंटू में डी फाइव बाई डी आई और एन इंटू में फाइव बाई आई। एन फाइव क्या है मेरा, त्रिशूल साई बाई आई, दैट इज फ्लक्स। व्हाट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, वेबर पर एम्पियर भी इंडक्टर की यूनिट हो जाएगी, अगर आपसे कोई ऑप्शन में दे दे तो। क्योंकि साई क्या मेरा, साई मेरा क्या है, फ्लक्स लिंकेज, दैट इज इक्वल टू एन इंटू फाइव। अब नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट होगी, नंबर ऑफ टर्न्स या 10 होंगे या 20 होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स से यूनिट लेस है। फ्लक्स की यूनिट क्या है मेरी, वेबर, और करंट की यूनिट क्या है मेरी, एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर भी मेरे इंडक्टर की यूनिट हो सकती है। इट इज ऑल्सो एम्पियर, सॉरी इट्स ऑल्सो हेनरी। और एक फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर का, एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, वहां से भी आप एक इंडक्टर की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, बस ये ध्यान रखना कि वेबर पर एम्पियर भी ऑल्सो ए यूनिट ऑफ इंडक्टर। ऐसे ही आप कैपेसिटेंस की यूनिट भी अलग अलग निकाल सकते हो, देयर नंबर ऑफ यूनिट्स, बट ज़्यादा याद मत रखो। यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, अगर कभी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे यूनिट पुट करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ इंडक्टेंस इज फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। एनी कंडक्टर इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए टाइम वेरिंग फ्लक्स, लाइक इफ एनी कंडक्टर, अगर इसमें से कोई मेरा टाइम वेरिंग करंट जा रहा है आई टी, तो यहाँ पे एक मेरा टाइम वेरिंग फ्लक्स जनरेट होगा फाई टी। तो अगर ये फ्लक्स इसी कंडक्टर से लिंक करेगा तो ये कंडक्टर में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस डेवलप कर जाएगा। एनी कंडक्टर बिकम्स इंडक्टर व्हेन फ्लक्स लिंकेजेस टू इट। ओके, जब भी कंडक्टर के अक्रॉस कोई मतलब फ्लक्स लिंक करेगा, मतलब सपोज हर सी एवरी कंडक्टर हैज ए टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज। अगर इस कंडक्टर के अराउंड अगर पहले एक फ्लक्स सेटअप हुआ फाई इन, सपोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये फ्लक्स मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेटअप हुआ फाई। नाउ इफ माई फ्लक्स इज ट्राइंग टू चेंज टू क्लॉकवाइज, देन दिस कंडक्टर विल अपोज दैट चेंज। ओके, सो उसे चेंज को अपोज करने के चक्कर में इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड देन विल that will create the inductance or that will oppose the flow of this main current, जिसकी वजह से मेरा फ्लक्स डायरेक्शन चेंज कर रहा था। दैट्स वाई एवरी कंडक्टर जब उसमें फ्लक्स लिंक करेगा तो वो हो जाएगा मेरा इंडक्टर। बट इन केस ऑफ डीसी, ऐसा क्या डीसी के केस में होगा, डीसी में क्या होता है, मेरा करंट इज कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट होगा तो मीन्स मेरा एक बार फ्लक्स सेट हो जाएगा। अगर वो फ्लक्स मेरा एक बार एंटी क्लॉकवाइज सेट हुआ तो वो पूरे दिन रात एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। और जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी इंडक्टेंस डेवलप नहीं होगा। सो इन केस ऑफ डीसी देयर इज नो इंडक्टेंस, दैट्स व्हाई HVDC लाइन आर आवर HVDC line are inductance less or they are only purely resistance only. HVDC में no inductance because our flux is time invariant. This is our flux is time invariant. जब time invariant का मतलब क्या है, which is constant over time. फ्लक्स मेरा टाइम इनवेरिंग है तो मतलब मेरा फ्लक्स कांस्टेंट विद टाइम, और टाइम वेरिंग है तो मेरा कैसे भी वेरी कर सकता है, बस वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है बस। ओके, नाउ बेस्ड ऑन फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। नाउ बेस्ड ऑन दैट वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ मशीन, वी विल सी देम शॉर्टली। फ्लक्स टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिंग मीन्स अगर मेरा फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा तो फ्लक्स तो है मेरा कांस्टेंट, फ्लक्स तो है मेरा कांस्टेंट। अगर मुझे अब ईएमएफ इंड्यूस कराना है देन माय कंडक्टर शुड बी इन मोशन, या फिर कंडक्टर मोशन में हो या फिर मेरा जहाँ से फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स मोशन में हो, बट देयर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन। ठीक है, लेकिन अगर मेरा फ्लक्स जो है वो टाइम वेरिंग फ्लक्स है, तो अगर मेरा फ्लक्स जहाँ से जनरेट हो रहा है वो मैग्नेट भी अगर मेरा स्टेशनरी है और मेरा कंडक्टर भी अगर स्टेशनरी है तो भी मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा मेरा, ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, यहाँ पे हम एसी लगाते हैं, दिस इज फ्लक्स,
यहाँ पे मेरा जो फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर वो क्या होता है, टाइम वेरिंग फ्लक्स। ठीक है, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स एक स्टेशनरी वाइंडिंग पे भी एक्ट करेगा तो भी रिलेटिव मोशन तो है, कंडक्टर स्टेट स्टेशनरी है बट फ्लक्स तो टाइम वेरिंग है, फ्लक्स तो कट कर रहा है इसे, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर भी और फील्ड भी दोनों स्टेशनरी है बट माई फ्लक्स इज टाइम वेरिंग, और फ्लक्स टाइम वेरिंग होने की वजह से मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इट इज इन द केस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। बट इन ए मोटर और जनरेटर माई फ्लक्स इज जनरली टाइम इनवेरिएंट। लाइक इन ए डीसी मशीन क्या होता है, मेरा नॉर्थ पोल मैंने यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ पे मैंने साउथ पोल लगा दिया, सो दिस फ्लक्स आर स्टेशन दिस पोल्स आर स्टेशनरी, डीसी मशीन में पोल नहीं घूमेंगे तो बस फ्लक्स मेरा आता रहेगा यहाँ से कॉन्स्टेंटली। देन आई हैव टू रोटेट द कंडक्टर इनसाइड द फ्लक्स, तो जब मेरा कंडक्टर रोटेट होगा मीन्स देन रिलेटिव मोशन आएगा, और जब कंडक्टर रोटेट हुआ तो रिलेटिव मोशन आया, देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एंड दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन वन ऑफ द आइदर या तो फ्लक्स रोटेट करे या फिर मेरा कंडक्टर रोटेट करे इन एनी मशीन। ठीक है, अगर कोई भी एक रोटेट करेगा तो रिलेटिव मोशन आएगा एंड माई ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, जिसको हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिक मीन्स कुछ ना कुछ घूम रहा है, एंड दिस इज द केस ऑफ अवर मोटर एंड जनरेटर, क्योंकि उसमें या तो कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा या फिर फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा। कौन कब करेगा वो हम अभी देखते हैं। फर्स्ट यू रीड दिस डेफिनेशन, if the flux is time invariant in nature it requires a relative motion between flux and the conductor। अगर मेरा फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है तो ये तो भाई रखा रखा तो नहीं काटेगा, देन वी नीड ए रिलेटिव मोशन, या तो आप फ्लक्स को मूव कराओ अब, या तो फ्लक्स को रोटेट कराओ या फिर कंडक्टर को रोटेट कराओ, आपकी मर्जी है। दोनों को रोटेट कराओगे आप बहुत ही ज़्यादा दिमागदार हो, दोनों को रोटेट करा दो, बट दैट मशीन विल नॉट बी इकोनॉमिकल। ठीक है, between flux and the conductor for the rate of change of flux linkage। ठीक है, one should rotate with respect to the other means there should be a relative motion or you can say one thing should cut another thing, या तो फ्लक्स कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर फ्लक्स को कट करे in a time invariant। but if the flux is time varying then it has inherent rate of change। अगर मेरा फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो ऑटोमेटिकली उसमें रेट ऑफ चेंज रहेगा which automatically induces voltage with stationary conductor। जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर में देखा था, अगर मेरा फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो वो स्टेशनरी कंडक्टर में भी वोल्टेज इंड्यूस कर देगा, क्योंकि फ्लक्स खुद ही चेंज हो रहा है बार बार, तो यू कैन से देयर इट इज इनहेरेंटली कटिंग द कंडक्टर, ऑटोमेटिकली कटिंग द कंडक्टर, क्योंकि फ्लक्स ही मेरा चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है। ओके, due to natural rate of change in flux with respect to time and then there is no need of relative motion। एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर हमने देखा था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जब फ्लक्स मेरा टाइम वेरिंग है, फ्लक्स मेरा खुद ही चेंज हो रहा है, तो देन आई डोंट नॉट नीड एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स, क्योंकि मेरा फ्लक्स खुद ही टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। नाउ बेस्ड ऑन दिस मैंने बोला था 3 मोड्स ऑफ ए मशीन, मतलब मेरे को रिलेटिव मोशन चाहिए, अब रिलेटिव मोशन कैसे मिलेगा, उसके लिए 3 मोड्स है। फर्स्ट, इफ माई फ्लक्स इज टाइम इनवेरिंग, मेरा फ्लक्स हो गया स्टेशनरी, टाइम इनवेरिंग है, तो अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, मेरे पास कंडक्टर चाहिए, मुझे रोटेटिंग ही होना चाहिए मेरा कंडक्टर। अगर मेरा फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है तो मेरा कंडक्टर शुड बी रोटेटिंग ओनली, और ऐसा ऐसा किस में होता है, डीसी मशीन्स में ना। ओके, तो फ्लक्स है मेरा टाइम इनवेरिंग, ठीक है, ऐसा किस में होता है, ऑल डीसी मशीन्स, ऑल डीसी मशीन्स, ऑल डीसी मशीन्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। ओके, वैसे हम आगे देखेंगे कि जनरेट एक डीसी मशीन के आर्मेचर के कंडक्टर में भी एसी ही जनरेट होती है, बस हम उसको बाहर निकाल लेते हैं डीसी की तरह। ठीक है, इन एनी मशीन वोल्टेज एंड टॉर्क आर जनरेटेड ऑलवेज एंड द वोल्टेज दैट इज जनरेटेड इज एसी ऑलवेज, ये भी ध्यान रखना आप। इन एवरी मशीन वोल्टेज इज जनरेटेड, टॉर्क इज जनरेटेड एंड व्हाट काइंड ऑफ वोल्टेज जनरेटेड, एसी इज जनरेटेड। लेकिन एक डीसी मशीन में हम इस एसी को बाहर एक कम्यूटेटर की हेल्प से डीसी बना के निकाल लेते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि कम्यूटेटर क्या होता है। फाइन, सो कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल डीसी मशीन्स। नाउ सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मेरी, मेरा फ्लक्स तो टाइम इनवेरिंग है, मीन्स मेरा फ्लक्स अभी भी स्टेशनरी है, फ्लक्स मेरा अभी भी स्टेशनरी है, बट मैंने फ्लक्स को
रोटेट करा दिया है और मेरा कंडक्टर है स्टेशनरी। कंडक्टर स्टेशनरी होगा तो मतलब कंडक्टर होगा मेरा स्टेटर पे, स्टेटर पे मेरा कंडक्टर होगा। और जो मेरा टाइम इनवेरिंग फ्लक्स है, जो मेरा टाइम इनवेरिंग फ्लक्स है वो कर रहा है रोटेट नॉर्थ साउथ, एंड दिस इज माई रोटेटिंग। वैसे तो फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, इतना ही फ्लक्स देती रहेगी। ओके, माई फ्लक्स इज रोटेटिंग, कंडक्टर इज स्टेशनरी, एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज सीन इन ऑल सिंक्रोनस मशीन्स, ऑल सिंक्रोनस मशीन्स। ठीक है, यहाँ पे मेरा होगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। मेरा फर्स्ट केस में भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, क्योंकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा कंडक्टर रोटेट कर रहा है, तभी मेरा फ्लक्स को कट कर रहा है। नाउ सी, मैंने आपको बताया था अगर आप डिजाइन करोगे बोथ रोटेटिंग मीन्स आपका फ्लक्स भी रोटेटिंग है, फ्लक्स वैसे टाइम इनवेरिंग है लेकिन आपका फ्लक्स भी रोटेटिंग है, और आपका स्टेटर मीन्स कंडक्टर भी रोटेटिंग है, तो वो मशीन इकोनॉमिकल नहीं होती है, अभी तक डिजाइन नहीं करी गई है। आप कर दो फ्यूचर में तो पता नहीं। नाउ थर्ड इज माई फ्लक्स इज स्टेशनरी एंड माई कंडक्टर इज स्टेशनरी। माई फ्लक्स इज स्टेशनरी, माई कंडक्टर इज स्टेशनरी, क्या होगा आप बताओ। एक मैंने ट्रांसफार्मर लिया और मैंने इस पे इनपुट में लगा दिया डीसी वोल्टेज, प्लस माइनस में 10 वोल्ट से मैंने इसमें इसके इनपुट पे लगा दिया डीसी वोल्टेज। कुछ आउटपुट आएगा? देयर विल बी नो आउटपुट, क्योंकि डीसी में कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं होगा। अब मेरा फ्लक्स में कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं है, मेरा फ्लक्स में कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं है, और मेरा कंडक्टर में भी कोई मोशन नहीं है, दैट मीन्स नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। और अगर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो प्राइमरी में भी कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, दैट मीन्स इट विल एक्ट एज ए डेड शॉर्ट सर्किट। एनपीसीआईएल साइंटिफिक ऑफिसर इंटरव्यू जुलाई 2018 मेरे से पूछा गया था। तो डीसी में क्या होगा, कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं है फ्लक्स में, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा मेरा, सपोज ईएमएफ डी फाई बाई डी, तो कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं है फ्लक्स में, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मीन्स हियर इट विल बी ए शॉर्ट सर्किट, द करंट विल बी आई इक्वल्स टू 10 वोल्ट अपॉन में कॉपर की वाइंडिंग है मेरी बिल्कुल जीरो, इनफाइनाइट करंट। आपका ट्रांसफार्मर फूक जाएगा, फूकने के बाद उसे आप किसी भी नजदीकी कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। ओके, सो if the my flux is stationary and conductor is stationary, it is not possible, the machine will get damaged. Now the actual configuration will be my flux is time varying, flux is time varying means flux मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, and my conductor is stationary। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा मेरा, अगर मेरा फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो ये ऑटोमेटिकली कट करेगा इस वाइंडिंग को, ऑटोमेटिकली कट करेगा इस वाइंडिंग को, तो मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस विल बी N2 इंटू डी फाई बाई डी टी। और जब यही फ्लक्स इसी वाइंडिंग ने इंड्यूस कराया तो ये फ्लक्स जब आएगा तो ये इस वाइंडिंग को भी कट करेगा, फ्लक्स तो सेम ही है, वही फ्लक्स सेकेंडरी को कट कर रहा है, वही फ्लक्स प्राइमरी को कट कर रहा है, तो मेरी प्राइमरी में भी वोल्टेज इंड्यूस होगी N1 इंटू डी फाई बाई डी टी, और सेकेंडरी में इंड्यूस होगी N2 इंटू डी फाई बाई डी टी। दोनों वोल्टेज को सेम फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, सो 5 एंड इट इज द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मशीन, एंड इट इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। पहले क्या था, डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज। ओके, नाउ सी, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन एनी मशीन इज ऑलवेज ऐसी, मैंने आपको बताया था कि डीसी मशीन के, अगर डीसी मशीन भी है मेरी, इफ आई हैव ए डीसी मशीन ऑल्सो, तो उस डीसी मशीन के आर्मेचर के कंडक्टर्स में भी एसी ही जनरेट होती है, बस हम उसे कम्यूटेटर की हेल्प से हम उसे डीसी बना के बाहर निकाल लेते हैं, इसीलिए हम कम्यूटेटर को कहते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। एक तो रेक्टिफायर होता है डायोड वाला, ये होता है मैकेनिकल रेक्टिफायर, दैट बाय वर्च्यू ऑफ द रोटेशन इट गिव्स डीसी आउटसाइड, अंदर एसी बाहर डीसी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशन। वो हम देखेंगे कैसे करता है, डोंट वरी। ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस follows all rule of machine, so we discuss it like a machine. If strict sense में बात करें तो it is not a machine. Now here is a like application. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था नेटवर्क की में, what is the purpose of studying electrical engineering? We have to generate power, okay, then we have to transmit power, and then we have to utilize power. बस ये है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, we have to generate power, we have to transmit power, we have to utilize power, after that then ये रिलायबल होना चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शुड बी चीप, वो सब मेरी बाद की बात है, बट फर्स्ट एम इज यू जनरेट पावर, यू ट्रांसमिट पावर एंड यू
यूटिलाइज दैट पावर और यू डिस्ट्रीब्यूट दैट पावर। फाइन। अब मेरा जनरेशन में क्या काम आएगा, जनरेशन में काम आएगा मेरा मशीन कौन सी काम आएगी, जनरेटर। ठीक है। देन माई मोटर, मोटर कहाँ काम आएगी, यूटिलाइज। जब हम यूटिलिटी करते हैं, मैं यूज करते हैं, अराउंड 70 to 80% ऑफ द टोटल पावर इज यूज्ड बाय मोटर्स ओनली। लाइक हमारे रूम में फैन भी है तो वो भी मोटर है, लैपटॉप का कूलर भी है तो वो भी एक मोटर है। एंड वेयर इज माई ट्रांसफॉर्मर यूज, ट्रांसफॉर्मर इज यूज माई, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर यूज होगा मेरा जो स्टेप अप करेगा, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर यूज होगा जो मेरा स्टेप डाउन करेगा, यहाँ पे आगे भी ट्रांसफॉर्मर होगा। सो ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन ऑल द एप्लीकेशन लाइक जनरेशन भी, ट्रांसमिशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड ऑल्सो यूटिलाइजेशन। ओके। सो मोटर का मेन काम कहाँ है, यूटिलिटी में, और जनरेटर का मेन काम कहाँ है, जनरेशन में। ओके। नाउ सी in large generators, large generator means which have ratings very high, like suppose greater than 5 megawatt, there the current value will be very high. So इस करंट को we never want that we extract this current using brush। अगर आप ब्रश लगा के इस करंट को निकालोगे, ब्रश की रिक्वायरमेंट कब होती है हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। दिस इज माई आर्मेचर, ठीक है, एंड दिस इज माई पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर मेरे आर्मेचर के ऊपर मेरे कंडक्टर हैं तो इससे मुझे करंट निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है ब्रश की। ठीक है। अगर मेरा करंट बहुत ही हैवी है तो आपको ये ब्रश पर डे के हिसाब से रिप्लेस करने पड़ेंगे, एवरी डे। उतनी ही देर मशीन चलेगी, उतनी ही देर मशीन बंद रहेगी ब्रश को रिप्लेस करने के लिए। दैट्स वाई इन लार्ज जनरेटर वट इज अवर एम, कि हमारा जो कंडक्टर हो जितने भी वो सब स्टेटर पे हो और मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे बहुत मिनिमम करंट रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई देयर इज नो प्रॉब्लम टू गिव दैट करंट वाया ब्रशेस। बट लार्ज जनरेटर में हम कंडक्टर को हमेशा स्टेटर पे रखते हैं ताकि ब्रश का एप्लीकेशन ही ना हो, ताकि आप सीधा सीधा वायर को लेके आप सीधा करंट ड्रॉ कर सको विदाउट एनी एक्स्ट्रा जॉइंट्स। ऑल द पावर अराउंड वर्ल्ड इज फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है। मैकेनिकल मीन्स देयर विल बी प्राइम मूवर, देन देयर विल बी जनरेटर एंड यूटिलाइजेशन बाय मोटर्स ओनली। ओके। नाउ we will see that how voltage is generated. This is Faraday's law of electromagnetic induction। क्या कहता है मेरा Faraday's law? There must be a relative motion। एक फ्लक्स होना चाहिए, एक फ्लक्स होना चाहिए, एक कंडक्टर होना चाहिए और फिर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, जिस मोशन की वजह से वो एक दूसरे को करेंगे कट। नाउ इस रिलेटिव मोशन के लिए हम यूज करते हैं हमारा प्राइम मूवर। ओके। सो कैसे जनरेट होती है हमारी, राइट हैंड थंब रूल से we find out the direction of our induced EMF। कैसे फाइंड आउट करते हैं, that we will see in the next class। See you soon। Thank you now। Okay, thank you all।